ہم کو خبر حالات کی ہر روز شب و روز، سچائی کہی بات کی ہر روز شب و روز۔ آداب، میں ہوں ظفر آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی اردو کا خصوصی پروگرام شب و روز۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسلمان بچیوں میں کی کم عمری میں شادی اور اس کا مسئلہ۔ ہندوستانی سماج میں عموماً بچی پالنے سے ڈولی پہنچ جاتی ہے، یہ سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں تو آج بھی سن بلوغ سے پہلے بھی شادیوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اس صورتحال میں مسلم سماج کی کیا صورت ہے، وہاں بچیوں کے ساتھ بچیوں کی شادیاں کس عمر میں ہو رہی ہیں، یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور اس کے کیا حل ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر سید مبین زہرا کو، جو سوشل اینالسٹ اور ان جینڈر ایشوز کے اوپر برابر اخباروں میں کالم بھی لکھتی رہی ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے ماہر ہیں، مرحوم خوشونت سنگھ جیسے مشہور و معروف جرنلسٹ نے آپ کی ایک کتاب پر دباچہ لکھا۔ تو ہم اس موضوع کے اوپر مسلم بچیوں کی کم عمری میں شادی کا مسئلہ، اس مسئلے پر ڈاکٹر سید مبین زہرا سے بات چیت کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں، ہم ایک نگاہ ڈالتے ہیں اس مسئلے کے ماضی پر۔ کم عمری کی شادی کسی بھی طرح کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ سلسلہ قدیم زمانے سے رائج ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ یہ سماجی طور پر قبول شدہ ایک ایسا رواج ہے جس پر نسلوں سے عمل ہو رہا ہے۔ جہالت اور قبائلی روایات کی تابعداری کرتے ہوئے والدین اپنی لڑکیوں یا لڑکوں کی شادی بچپن میں ہی کر دیتے۔ ملک کے مسلمانوں میں تو یہ روایت اور عام تھی، جو مذہب کا حوالہ دے کر لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں کر دیتے تھے، لیکن وہ اس اسلامی اصول کو نظر انداز کر دیتے تھے جس کے مطابق شادی کے لیے ان کی رضامندی جاننا اور ذمہ داری نبھانے کا اہل ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک دین اسلام کے حوالے کی بات ہے تو اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو شادی کی ایک منیمم میریجبل ایج کی بات کرتا ہے۔ یہی ایسا مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ بلاغت کے بعد ہی شادی ممکن ہے، بلاغت سے پہلے کی شادی کو وہ غلط مانتا ہے۔ شادی ذمہ داریوں سے پر ایک مضبوط بندھن ہے۔ اگر دونوں فریق میں سے کوئی بھی اس بندھن میں بندھنے کے لیے راضی نہ ہو تو پھر وہ کیسے اس ذمہ داری کو نبھا پائے گا؟ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان کی 47% آدھی عورتوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کم عمر میں ہی کر دی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں اس کی بڑی وجہ مذہب سے زیادہ سماج میں رائج فرسودہ رسومات تھیں۔ دوسرے گھر جا کر ایسی بچیاں ساری زندگی اذیتیں اٹھاتی رہتیں۔ کچھ غریب ماں باپ اپنی کمسن بیٹیاں غربت کی وجہ سے بوڑھے آدمیوں کو بیاہ دیتے۔ ان بچیوں کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ بے میل شادیوں کا ایک سب سے جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں ایک طرح سے غلام کی طرح اور نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہیں، اور یہ مسلم معاشرے میں یہ جہاں پر قبیلائی عناصر ابھی تک موجود ہیں وہاں پر یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا ایک پہلو اس میں ظاہر اکنامکس کا بھی ہے۔ اگر پریوار بہت غریب ہے، جو کہ ہم حیدرآباد میں دیکھتے ہیں اکثر، حیدرآباد میں یہ ایک مسئلہ لگاتار بنا ہوا تھا جس کو علماء کرام نے اور عالموں نے بیٹھ کر کے حل کیا، اور ایسی شادیوں کے اوپر قانونی طور پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया तो उसने कम उम्र लड़के लड़कियों की शादी पर 1929 में पाबंदी आयद कर दी। बच्चा शादी मुखालिफ कानून 1929 के तहत अंग्रेज हुकूमत ने लड़कों की 21 साल से कम और लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी पर पाबंदी आयद कर दी। ये कानून हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों समेत मुल्क की सभी कौमों पर नाफिज रखा गया। अलबत्ता मुस्लिम रहनुमाओं और उलमा की मुखालफत के सबब इससे उन्हें मुस्तस्ना रखा गया और 1937 में शरई कानून की वजह से उन्हें उम्र में मुराद दी गई। हालांकि इससे कबल मुसलमानों के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद खां भी कम उम्री की शादी की खुले तौर पर मुखालफत कर चुके थे। बहरहाल माजी में मुस्लिम कम उम्र लड़के लड़कियों की शादी का सिलसिला जारी रहा। डॉक्टर जहरा, आपने ये देखा कि मुसलमानों में बिलखुसूस मुस्लिम बच्चियों में कम उम्री का शादी का एक मसला है। खाली मुसलमानों के साथ ये हमारा एक समाजी मसला है, लेकिन हम मुसलमानों में भी खास तौर ये इसमें माजी में क्या सूरत हाल रही, चूँकि आप जेंडर इशूज़ पर आपकी गहरी निगाह है और आपने इस पर काफ़ी रिसर्च भी की है, ये क्या सूरत हाल रही, पहले क्या सूरत हाल थी? देखिए, जब औरतों का कोई मसला हम देखते हैं समाज में, मेरा मानना ये है कि अगर हम मंगल ग्रह पे भी चले जाएंगे, मार्स पे भी चले जाएंगे, तो हमारा जो एटीट्यूड है, जिसको कहते हैं हमारा नज़रिया जो है औरतों के इशू को लेकर, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमें काम वही करना है, हमें एटीट्यूडल चेंज लाना है, हमें नज़रिए में बदलाव लाना है। और जब मसला किसी भी समाज का हो, मुसलमानी समाज, मुस्लिम समाज का हो, गैर मुस्लिम समाज का हो, वो एटीट्यूड का है, क्या रवैया। बिल्कुल, समाज का उस मसले को लेकर क्या रवैया। और आप जानते हैं कि औरतों को लेकर एक रवैया हमेशा रहा है, और हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए या आप आज भी देख लीजिए, किसी गांव का कोई इशू आप ले लीजिए, गांव में रहने वाली औरत का इशू ले लीजिए, आप शहर में रहने वाली औरतों का इशू ले लीजिए, दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर आप खाब पंचायतों जैसे मामले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि औरतों के जो मसले हैं वो मसले कहीं पे अलग नहीं है, उसमें कोई मज़हब, उसमें कोई कास्ट, क्रीड का कोई मसला नहीं है। औरतों को लेकर समाज में एक तरफा एक नज़रिया नज़र आता है। आपने एटीट्यूड की बात की, बुनियादी तौर पे इसको आप डिफाइन करेंगे, ये क्या एटीट्यूड से मुराद क्या, यानी रवैये की बात। बिल्कुल बिल्कुल, एटीट्यूड का से मेरी ये मुराद है, मेरा ये कहने का मतलब है कि औरतों को एक सब्जुगेशन में रखना, फ्रंट में नहीं रखना। और जैसा हम जो आज सेकंड सेक्स, यस बिल्कुल, लेकिन आज जैसे हम जो बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मामले की बात कर रहे हैं, शादी किसकी हो रही है? लड़की की हो रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने रवैये की बात की, इसका जरा सा तारीखी निगाह अगर डालें तो माजी में क्या सूरत हाल थी और उसमें कोई फर्क आना शुरू हुआ या नहीं? देखिए, माजी बिल्कुल आप अगर आप हिस्टोरिक जी पर्दे के अलावा औरत के लिए देखिए, मेरा ये मानना है आगा साहब कि पर्दा, ये सारी चीज़ें आप मज़हब के हिसाब से अगर आप ले लें तो मज़हब इस्लाम, जहाँ तक मुझे पता है, ये नहीं कहता कि औरतों की उनको तालीम ना दी जाए, एजुकेशन को नहीं रोकता। तो इसीलिए मैंने एटीट्यूड की बात की। और एटीट्यूड मुस्लिम माशरे को जी उसमें कायदे से मजहबी एतबार से किसी किस्म की पाबंदी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी नहीं चाहिए, है ही नहीं। इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन डंडा तो मजहबी का चलाया जाता है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आगा साहब, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि औरतें या मर्द जो हैं उनके लिए कोई डिफरेंट रूल्स नहीं है। मजहब में कोई डिफरेंट रूल्स नहीं है। इक़रा, आपको इल्म हासिल करना है, इल्म की रोशनी से आपको उसको आपको जानना है, लेकिन लड़का हो या लड़की हो, लेकिन चेंज मजहब ये कहता है। लेकिन जो मैं बात कहने की कोशिश कर रही हूँ वो एटीट्यूडल चेंज की बात कर रही हूँ। क्योंकि औरतों से रिलेटेड कोई भी मसला होता है, उसमें सोसाइटी का जो एटीट्यूड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ फैमिली का भी एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप तारीख़ में देखिए कि औरतों को एक्सेप्ट करना, उनके पावर को एक्सेप्ट करना, उनकी एजुकेशनल एबिलिटी को एक्सेप्ट करना समाज के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज तो फिर भी हम यहाँ बैठ के ये तो बहुत ही बिल्कुल तारीख था। कैसा आपसे आज से 10-25 बरस पहले आप
का क्या अंदाजा, क्या देखिए, मैं आपको बहुत मुस्लिम सिंपल एग्जांपल ये बता सकती हूँ कि जैसे अगर हमारी फैमिली में है, अगर हम आपके जो घर की औरतें हैं, कुछ साल पहले पर्दा एक इम्पेडिमेंट बनता था कि वो पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए एक वो ब्लॉक बनता था कि वो आगे ना पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल हाँ, लेकिन उसके बावजूद वो औरतें बहुत काबिल थी, लेकिन वो सामने नहीं आती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन औरतों में या उनमें काबिलियत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे समाज बदला, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और मैं ये बोलना चाहूँगी कि डेवलपमेंट की वजह से अगर कुछ चीज़ें हमें अचीव भी हुई हैं, अगर औरतों को, बच्चियों को कोई चीज़ें अचीव भी हुई हैं, तो आप देखिए आज सिक्योरिटी का मसला इतना बड़ा है कि औरतें बाहर जाती हैं, वो सिक्योर्ड हैं कि नहीं हैं, उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ तशद्दुद हो रहा है, कई ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये भी एक चेंज आया है, उस पर भी हमें काम करना। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम माशरे में का माजी सन 1920, सन 30, सन 40, 50 तक अगर कहा जाए, बल्कि आज़ादी से पहले तो बड़ा तारीख कहा जाएगा आज के दौर के। फिर पार्टीशन के प्रॉब्लम्स थे, उससे भी रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स थे। तो मैं कह रहा हूँ, मगर उसको माजी को एक तारीख के एतबार से कहेंगे कि घर की चार दीवारी, बहुत से बहुत दूरी या रक्शे में पर्दे का बंधना, इसके बाद तालीम, कोई फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन आगा साहब, ये मसला सिर्फ मुस्लिम औरतों के साथ नहीं था, ये मसला आम जो और उस ज़माने की, उस पीढ़ी की आम औरतों के साथ था। लेकिन उसके साथ साथ उसी ज़माने में आप फ्रीडम मूवमेंट में देखिए, औरतों का खुले तौर पर पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिविज़म में एक्टिविस्ट हैं वो, फ्रीडम मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन है। लेकिन जब उनके हुकूक की बात आती है, बिल्कुल भिकाजी कामा जैसी औरतें जो हैं, और मुसलमानों में भी बिल्कुल, तो वो जनरल, हाँ, और जो फ्रीडम मूवमेंट के जो मुजाहिद तैयार किए थे, वही माओ ने ही तो तैयार किए थे। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो असली तरबियत है, जो माएँ हैं, वही देती हैं। अब हम खाल पर एक नज़र डालना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि सूरत कितनी बदली है और सूरत हाल किस कदर कैसी है, आपको कैसी लगती है, क्या पोटेंशियल्स हैं, कितनी पॉजिटिविटी है और क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो दौर हाजिर पे एक नज़र डालते हैं नाज़रीन, डॉक्टर सैयद मुबीन ज़हरा के साथ। कम उम्री की शादियां हिंदुस्तान में एक वबा की तरह फैले हुए संगीन मसाइल में से एक है। हालांकि हिंदुस्तान में लड़की की शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर की गई है, क्योंकि 18 बरस से कम उम्र की लड़की हार्मोन में होने वाली तब्दीलियों से निपटने के काबिल नहीं हो पाती। कम उम्र लड़कियों के लिए हमल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बैनुल अक़वामी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन स्टडी के मुताबिक कम उम्र की दुल्हन सिनफी अदम मुसावात, गुर्बत, तशद्दुद, जिस्मानी और जिनसी बीमारियों और HIV के फैलाव का निशाना बन सकती हैं। कम उम्री की शादियों को अक्सर खानदानी मसला समझा जाता है, जिन पर मजहब और रिवायात की हुक्मरानी है। इसी वजह से हुक्काम आईन में मौजूद कवानीन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहते हैं, या कौमी कवानीन और मजहबी रिवाज में मौजूद तजादात की वजह से मजबूर हो जाते हैं। इस्लाम वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें शादी की मिनिमम एज है। इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसमें वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें निकाह को रजिस्टर करने की बाकायदा हिदायत है। इस्लाम ऐसा मज़हब है जिसमें बाकायदा तलाक़ को डिक्लेयर करने की बाकायदा हिदायत है। तो ये इस्लाम के मानने वाले जब ये कहते हैं कि ये गलत है या हमको इससे एग्जम्पशन दिया जाए, तो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है। और इसमें एक पहलू ये है कि जब आप मिनिमम मैरिजेबल एज से आप एग्जम्पशन चाहते हैं, तो उसका सबसे बुरा असर लड़की की ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों में कम उम्री में शादियों की सूरत हाल तो और अबतर है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक 43% मुस्लिम लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है। 2001 की मरदमशुमारी के जरिए मुसलमानों में शादियों के हवाले से एक और तस्वीर सामने आती है, जो खतरनाक सूरत हाल की जानिब इशारा करती है। इसके मुताबिक
41% مسلم لڑکیوں کی شادیاں 10 سے 17 سال کے درمیان کر دی جاتی ہے، تو وہیں 2.25% ایسی مسلم بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کی شادی 10 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے۔ ایسا زیادہ تر جنوبی ہند کے علاقوں بالخصوص مسلمانوں میں زیادہ ہوتا ہے، جبکہ بنگالی مسلمانوں میں کم عمر کی شادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے کہا کہ گھروں میں بند تھی، چار دیواریوں میں تھی، لیکن پھر بھی بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ آج کی عورت کی کیا صورتحال ہے، خصوصاً شادی کے رشتے کے تعلق سے، اور مسلم معاشرے میں اس وقت کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ دیکھیے، جب ہم شادی بیاہ کی بات کرتے ہیں عورتوں کو لے کر، تو آپ نے خاص کر عورتوں کو لے کر شادی بیاہ کی بات کی، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شادی بیاہ کا مسئلہ عورتوں کی بنسبت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا لڑکوں کی بنسبت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے، ایسا ایک عام ماننا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر چھوڑ کے ایک نئے اس میں سسٹم میں جاتی ہے، اس میں اس کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے سب، تو اس کی بنسبت کافی سوشل، یس بالکل سوشل کنسرن ہے، اس کی فائنینشیل سیکیورٹی کی کنسرن ہے۔ جہاں تک مذہب ہے وہ اس کو ساری سیکیورٹیز دیتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اویئرنیس کتنی ہے عورتوں میں اپنے حقوق کو لے کر، اپنی ڈیوٹیز کی، تو اس کو ساری اویئرنیس 24 آورز اس کی ہیمرنگ ہوتی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ وہ ایک ڈومیسٹک، لیکن آپ نے کنٹمپریری اس کی بات کی، جیسے ویمن موومنٹ کے بعد جو ویمن ایکٹیویزم ہوا، عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی، اس سے یہ سارے ایشوز کنسرن میں آئے، مین اسٹریم میں آئے، نہیں تو آپ اور ہم آج بیٹھ کے اس بات پہ ڈسکس کریں، مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ مسلم سماج کی اپنی ایک سوشل بیک گراؤنڈ اور ایک سوشل، جس کو ریلیجس کہا جاتا ہے، حالانکہ میں ریلیجس مانتا نہیں، جی، پرابلم ہے، ایک اسپیسیفک پرابلم ہے، اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مذہب ہم کو یہ بتاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ عورت کی جگہ اس کا گھر۔ نہیں، لیکن کیا مذہب میں ایسا ہے؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے، سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، مذہب میں ایسا ہے، تعلق ہے وہ تو رسول اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے گئے، نہیں تو مذہب میں جب ایسا نہیں ہے، عورتیں گئیں، لیکن یہ کامن مذہب از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن کامن پریکٹس اور کامن پرسپشن ایز اے سوشل ریپرزینٹیشن آف ریلیجن جو دیا گیا ہے، وہ انٹرپریٹیشن جو دیا گیا ہے، بالکل بالکل وہ یہی، تو ایک اسپیسیفک پرابلم ہے مسلم معاشرے کی، اور وہ موجودہ دور میں کس حد تک ٹوٹ رہی ہے۔ نہیں دیکھیے، وہ آپ اور ہم جیسے لوگ سماج کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں کیسے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، وہ چینج آپ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ نہیں بالکل آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے، وہ چینج آ رہا ہے، تبھی تو آج آپ اور ہم بیٹھ کے اس بات کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چاہت بھی ہے بچیوں میں پڑھنے کی۔ میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، بستہ اٹھائے بچیاں۔ آپ دیکھیے، آپ محلوں میں جائیے، مسلم محلوں میں ایسا نہیں ہے، بچیاں جا رہی ہیں اسکول، پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن جو میں سولوشن کی بات کر رہی تھی، میں یہ بات کہہ رہی تھی، سولوشن پہ ہم بات میں آئیں گے، ہم ذرا سا یہ موجودہ حال کا منظرنامہ کیسا، آپ کو کتنا فرق دکھائی دے رہا ہے ماضی اور وہ فرق تبھی آئے گا ڈولی سے اور بخشوں میں بنی چادر سے لے کے اسکول تک، کالجز تک، سائنس تک، نرسنگ تک، اور مسلم عورت کتنی پہنچی اور اس کی شادی کے اس میں کتنا فرق آیا، شادی کے کانٹیکسٹ میں۔ نہیں، شادی میں تو فرق آیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ سیکشنز ہیں جہاں کام کرنا ضروری ہے، جہاں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور سرکار کی بھی جو ایجنسیز ہے وہ کام کر رہی ہیں، ان کی ذمہ داری، اس کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس سوسائٹی کے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، این جی اوز ہیں، آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے گھر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کے ساتھ ایجوکیشن، آپ ان کو اس میں ہیلپ کریے، ان کو اویئرنیس، بالکل اویئرنیس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ دار لوگ ہیں مذہب سے ریلیٹڈ بھی، جو جیسا آپ جو ابھی مذہب کی آپ جو بات کر رہے تھے کہ مذہب میں تو ایسا نہیں ہے، تو ایسا کیا ہے کہ وہ مسکنسیپشن کریٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ چینج آ رہا ہے، اور وہاں پہ چینج ضرور آ رہا ہے، ہاں، لیکن اب جیسے آپ اگر مسلم لڑکیوں کی شادی بیاہ کی اگر بات کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شادی کرنے سے ان کی پڑھائی لکھائی پہ کوئی چینج آنا چاہیے۔ ایسی عورتیں ہیں، میں خود ہوں اور آس پاس بھی میں یہ بدلاؤ دیکھ رہی ہوں، نہیں لیکن نہیں ایک چیز پوائنٹڈلی منظرنامہ بدلا ہے،
हाल बेहतर हुआ है नहीं? देखिए ये कोई मैथ्स तो है नहीं कि 2+2 4 होगा। मगर आपने सोसाइटी में observe धीरे, किया, हाँ जो बिल्कुल, observe सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आ रहा है और आएगा, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैरिज एज बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मैरिज जो है वो एक वजह बन रही है उनके सब्जुगेशन की? नहीं है। मैरिज के साथ साथ एम्पावरमेंट होना चाहिए। अगर बच्चियों की मैरिज हो रही है तो जिस घर में शादी हो रही है वो भी उनके एजुकेशन में उनकी हेल्प करें, उनको एम्पावरमेंट में हस्बैंड्स जो हैं वो सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है कि मैरिज विल बी नॉट एन इशू कि जिसमें आप उनको फर्क पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल और फ़र्क पड़ रहा है, positive पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है अभी। बातचीत कर रहे हैं मुस्लिम माशरे में कम उम्री में बच्चियों की शादियों के मसले पर। आइए एक निगाह डालते हैं मुस्तकबिल पर। कम उम्री में शादी कराना हिंदुस्तानी कानून की रौ से एक जुर्म है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए इस्लामी कानून के मुताबिक उन्हें इससे मुस्तस्ना रखे जाने की मांग बदस्तूर जारी है। इसके बरक्स बहुत सी मुस्लिम तंजीमें और एक बड़ा तबका कम उम्री में मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी के खिलाफ है। जनूबी हिंद में कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है, जिसमें बहुत से मुसलमानों बिलखुसूस खवातीन ने कम उम्र में शादी की मुखालफत की थी। बहरहाल शरई कवानीन के मुताबिक कम उम्र में शादियों की इजाजत का मुद्दा अभी भी जेर बहस है। ताहम कम से कम उन हजरात के खिलाफ सख्ती से पेश आना जरूरी है जो कम उम्र के लड़कों और लड़कियों की शादी सिर्फ इस गरज से करा देते हैं कि वो इन पर बोझ हैं। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा भी हिंदुस्तान में कम उम्री की शादी के नुकसानात के बारे में आगाही फैलाने के लिए काम कर रही है, लेकिन हालात अब भी ऐसे हैं कि लोग इसे मजहबी रंग देकर अपने आप को इससे बरी कर लेते हैं। हालांकि मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसान की नशोनुमा के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। बहुत से मुस्लिम उलमा और रहनुमा भी कम उम्री में लड़के लड़कियों की शादी किए जाने की वजह से उन पर पड़ने वाले मनफी असरात से मुत्तफिक हैं। उनके मुताबिक इस्लाम की रौ से ही लड़कों और लड़कियों की शादियां उस वक्त की जानी चाहिए जब वो आकिल व बालिग हों। ये अमर खुशाइंद है कि अब मुसलमानों बिलखुसूस खवातीन में भी इसके तई बेदारी आ रही है। ऐसे में कम उम्री में शादियों को रोकने के लिए उलमा कराम को भी अहम किरदार अदा करना होगा। अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी इस मसले पर कि मुस्तकबिल पर कि क्या सूरत हाल है, और आइए आप गुफ्तगू करते हैं अपनी एक्सपर्ट सैयद मुबीन ज़हरा, जो जेंडर इश्यूज की एक्सपर्ट है। प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मक़दूम मुबीन ज़हरा साहिबा। मुस्तकबिल क्या है, देखिए कैसा है? मुस्तकबिल जो है वो बहुत सिर्फ शादी ही नहीं, शादी ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि क्या एज बढ़ेगी, ये मसला कम होगा, और उसके साथ साथ जो आपने बात बहुत अहम बात कही कि मुस्लिम माशरे में औरत के पूरे एम्पावरमेंट की, उसका मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? नहीं देखिए, मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुस्तकबिल तभी अच्छा होगा जब हमें अपने प्रेजेंट में हमारे हाल में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम उसके सोल्यूशन ढूंढेंगे। जब हम मैरिजेबल एज की बात की, मैं बातें कलाम के लिए माजरत चाहता हूँ जी। आपने सही कहा कि कोई भी मसला जब आप तो हाजिर में उसका हल तलाश करेंगे तभी मुस्तकबिल तलाश हो सकता है। ये बात मुस्लिम माशरे में हो रही है, नहीं हो रही? हल तलाश किए जा रहे हैं कॉन्शियसली? नहीं देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। हर समाज के अपने अलग अलग मसाइल भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, समाज का पस मंजर बहुत अहम बात है, बहुत अहम होता है। उसके अपने वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, उसको तोड़ना। तो ऐसा कोई कॉन्शियस एफर्ट मुस्लिम माशरे में बहुत सोच समझ के इस किस्म की पहलकदमी हो रही है या नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि कम्युनिटी में तो वो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस आ गई है और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार को चाहिए कि इस तरह की योजनाएं बनाएं, इस तरह के स्कूल कॉलेजेस हों जो उनके कंसर्न को लेकर, कम्युनिटी कंसर्न को लेकर, अगर वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां जो हैं वो पर्दे में पढ़ें, उसमें पढ़ें, तो एजुकेशन, पर्दा जो है वो हिंड्रेंस ना बने एजुकेशन को लेकर, उस तरह के गर्ल्स कॉलेजेस बनाए जाएं जहां वो इंटरेक्ट कर सकें, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, और ऐसा काम हो रहा है। आप अगर साउथ में जाएं तो इस तरह के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ
ऑल वुमेन कैंपस है। मैं खुद कई बार मैंने, जैसे औरंगाबाद में एक ऑल वुमेन कैंपस है जहाँ KG to PG एंड नाउ PhD, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मसले, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं, जो इश्यूज हैं, उनको बैक सीट देते हुए, उसका सोल्यूशन ढूंढते हुए औरतों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए सोचा जाए। क्योंकि औरत सिर्फ अपनी डिग्री और अपनी नौकरी नहीं करती, बल्कि पूरा एक माशरा भी बनाती है। अगर तालीम नहीं है तो नहीं, आमतौर पे आप देखते हैं ये कहा जाता है पढ़ लिख के क्या करेगी, नौकरी थोड़ी करवानी है। और आज वो चेंज आ रहा है क्योंकि लड़के पढ़ी लिखी बीवी चाहते हैं और लड़कियां भी चाहती हैं कि वो पढ़ें, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, वो अपनी खुशी के लिए भी पढ़ना चाहती हैं। तो खुशी और एक ऐसी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन एक ऐसी पैदा कर सके जो मोर अवेयर हो। इसमें फर्क कैसा लग रहा है आपको कि जो मैरिज एज है उसमें फर्क आता चला जा रहा है, मुस्तकबिल में तेजी से ये और होगा? 18 साल की जो कॉन्स्टिट्यूशन वो है उसमें उसकी जानिब बढ़ेगा माशरा? देखिए, हम उस देश में हैं जहाँ 12 साल 13 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी और वो बेवा भी हो जाती थी और उसके बाद उनकी कैसी ज़िंदगी होती थी। वहाँ अगर ये 17 साल हुआ है तो मुझे लगता है आगे भी इसमें चेंज आएगा। ये रिपोर्ट खुद ही कह रही है कि फर्क आ चुका है और मुस्तकबिल में और फर्क आना लाजमी। क्योंकि आप एक बात और है मुबीन ज़हरा, आप किसी कम्युनिटी माशरे से ताल्लुक़ रखते हो या किसी जात बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलन मुसलमान हो, हिंदू हो, जाट हो, जाटा हो, ब्राह्मण हो, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है तो उसका असर उस इन स्पेसिफिक माशरों पे भी पड़ना लाजमी है। बिल्कुल, हाँ, वी आर इन अ पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम ग्लोबलाइजेशन के समय में, उस टाइम में हैं, तो ऑब्वियसली वो चेंज तो आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें, अब मेरे रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं मानती हूँ कि औरत को किसी खाने में नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि औरत जो है वो 50% है। तो अगर औरत का एक जनरल डेवलपमेंट होगा, औरतों से रिलेटेड जो ये बात सही है कि माइनॉरिटी में भी हम माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की जो औरतें हैं वो माइनॉरिटी में भी क्योंकि औरत एज इट इज़ माइनॉरिटी में आ जाती है जब हम सोशल एटीट्यूड की बात करते हैं। तो जब औरतों को एक कंपोजिट यूनिट मान के औरतों के लिए कोई डेवलपमेंट की चीज़ें होंगी तो नेचुरली जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं वो चेंज ज़रूर आएगा। बिल्कुल, और वो हो रहा है। बिल्कुल, मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है, क्योंकि अगर औरतों का मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा तो ह्यूमन रेस का मुस्तकबिल, क्योंकि और इस रेस को पैदा करने वाली औरत है, उसको तरबियत देने वाली औरत है, तो अगर उसका मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा तो हम एक बहुत ही डार्क तारीक पीढ़ी सामने हमारे नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबीन ज़हरा अपने ख्यालात के वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम इस हफ्ते हम यही ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते प्रोग्राम शब रोज़ में फिर हम एक नई कड़ी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।